योर अटेंशन प्लीज पीटर नेविले फ्रेडरिक पोर्टर की कविता है। पीटर नेविले फ्रेडरिक पोर्टर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे, लेकिन ब्रिटेन में बस गए थे। इस तरह वे ऑस्ट्रेलिया मूल के ब्रिटिश साहित्यकार हैं। पीटर पोर्टर की यह कविता एक रेडियो अनाउंसमेंट की तरह है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के जो परमाणु विभीषिका उत्पन्न हुई थी, यानी हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बमों का प्रहार किया गया था, उसी से संदर्भ लेती हुई यह कविता लिखी गई है। यानी इस कविता में जो पोस्ट मॉडर्न युग है, जो परा आधुनिक युग है, उसके संतरास को, उसकी कुंठा को व्यक्त किया गया है। इस कविता में यद्यपि 63 पंक्तियां हैं, परंतु पूरी कविता एक ही स्टैंजा में लिखी गई है। यानी अनुच्छेद एक ही है, पंक्तियां जरूर 63 हैं। कविता में कोई राइम नहीं है, कोई लय नहीं है, कोई छंद वाला ढंग नहीं है, यानी मीट्रिक पैटर्न नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ये मुक्त छंद की कविता है, लेकिन छंद जैसा कोई उद्यम इसमें किया नहीं गया है। योर अटेंशन प्लीज एक आकाशवाणी उद्घोषणा जैसी कविता है। यानी लगता है कि कोई रेडियो का अनाउंसमेंट हो रहा है किसी खतरे पर, जैसे बिना भावनाओं के एक सपाट अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही योर अटेंशन प्लीज एक सपाट अनाउंसमेंट जैसी दिखने वाली कविता है। आए इस कविता के बारे में विस्तार से अध्ययन एवं विमर्श करें। योर अटेंशन प्लीज। योर अटेंशन प्लीज, the polar dew has just warned that a nuclear rocket strike of at least 1000 megatons has launched by the enemy directly at our major cities. This announcement will take 2.25 minutes to make. You therefore have a further 8.25 minutes to comply with the shelter requirements published in the Civil Defense Code section Atomic Attack. A specially shortened mass will be broadcast at the end of this announcement. Protestant and Jewish services will begin simultaneously. Select your wavelength immediately according to instructions in the Defense Code. Do not take well-loved pets, including birds, into your shelter. They will consume fresh air. Leave the old and bedridden. You can do nothing for them. Remember to press the ceiling switch when everyone is in the shelter. Set the radiation aerial. Turn on the geyser barometer.
Turn on the Geiger barometer. Turn on the Geiger barometer. Turn off your television now. Turn off your radio immediately. The services end. At the same time, secure explosion plugs in the ears of each member of your family. Take down your plasma flasks. Give your children the pills marked 1 and 2 in the CD green container. Then put them to bed. Do not break the inside airlock seals until the radiation all clear shows. Watch for the cuckoo in your perspex panel, or your district touring doctor rings your bell. If therefore this your air becomes exhaust, or if any of your family in critically injured, administer the capsule marked Valley Forge Red Pocket in one survival kit for painless death. Catholics will have been instructed by their priests what to do in this eventuality. This announcement is ending. Our president has already given orders for massive retaliation. It will be decisive. Some of us may die. Remember, statistically, it is not likely to be you. All flags are flying, fully dressed. On government buildings, the sun is shining. Death is the least we have to fear. We are all in the hands of God. Whatever happens, happens by His will. Now go quickly to your shelters. तो एक कविता थी जो कि रेडियो अनाउंसमेंट की तरह बिना किसी भावनाओं के अनइमोशनल ढंग से लिखी गई है। इस कविता में यद्यपि कोई लय नहीं है, कोई मीटर नहीं है, तो भी विभिन्न कविता के जो टेक्निक्स हैं उनका उपयोग किया गया है। तो इस कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनमें किन किन टेक्निक्स का उपयोग किया गया है। योर अटेंशन प्लीज, यानी कृपया ध्यान दीजिए। योर अटेंशन प्लीज। योर अटेंशन प्लीज। The polar dew has just warned that a nuclear rocket strike of at least 1,000 megatons has been launched by the enemy directly at our major cities। यानी कि पोलर ड्यू ने चेतावनी दी है कि एक दुश्मन का रॉकेट जिसमें 1,000 मेगाटन का 1,000 मेगाटन का प्रहार क्षमता वाला ये रॉकेट है और इसने जो हमारी बड़े शहर हैं उस पर वो नाभिकीय प्रहार या न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। तो 1,000 मेगाटन यानी 1,000 मेगाटन्स बहुत ज़्यादा होता है। This announcement will take 2.25 minutes to make. You therefore have a further 8.25 minutes to comply with the shelter। यानी इस जो ये उद्घोषणा की जाती रही कि यह जो घोषणा हो रही है इसमें
2 और 1/4 मिनट लेंगे, यानी इस उद्घोषणा में 2.25 मिनट खर्च होंगे। और तब भी जो है 8.25 मिनट यानी 8 और 1/4 मिनट यानी 8.25 मिनट बचेंगे, 8 मिनट और 15 सेकंड बचेंगे टू कंप्लाई विद द शेल्टर, जिससे जो सुरक्षित आश्रय गृह हैं उसमें जाया जा सके। तो देखिए इस कविता में बिल्कुल गणितीय आकलन किया गया है कि 2.25 मिनट, 8.25 मिनट, यानी इसमें भावुकता नहीं है, भावनाएं नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स है, गणित है, बिल्कुल गणित के ढंग से जोड़ा घटाया जा रहा है। रिक्वायरमेंट पब्लिश्ड इन द सिविल डिफेंस कोड सेक्शन एटॉमिक अटैक। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिविल डिफेंस कोड के एटॉमिक अटैक वाले सेक्शन में जो ज़रूरतें थी, छापी गई थी, उनको सबका पालन करना है। ए स्पेशली शॉर्टेंड मैच विल बी ब्रॉडकास्ट एट द एंड ऑफ दिस अनाउंसमेंट, यानी इस घोषणा के अंत में एक संक्षिप्त एक ब्रॉडकास्ट होगा, एक संक्षिप्त प्रसारण होगा। प्रोटेस्टेंट एंड ज्यूइश सर्विसेज विल बिगिन साइमल्टेनियसली। Select your wavelength immediately according to instructions in the डिफेंस कोड। तो डिफेंस कोड में जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं उस आधार पर अपनी जो तरंग दैर्घ्य है, अपना जो वेवलेंथ है, वो व्यक्ति चुन ले। डू नॉट टेक वेल लव्ड पेट्स इंक्लूडिंग बर्ड्स इनटू योर शेल्टर, दे विल कंज्यूम फ्रेश एयर, लीव द ओल्ड एंड बेड रिडन, यू कैन डू नथिंग फॉर देम। अब देखिए इसमें एक कितनी क्रूर बात है। ये कहा जा रहा है कि जो पालतू पशु हैं, जानवर हैं, यहाँ तक चिड़िया भी हैं, उनको अपने साथ शेल्टर में मत ले जाइए, क्योंकि वे ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, फ्रेश एयर वो खाएंगे, फ्रेश एयर का उपयोग करेंगे। और जो लोग बेड रिडन हैं, यानी बहुत बूढ़े हो गए हैं या बीमार हैं, उनको भी मत ले जाइए, क्योंकि उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पालतू पशुओं को, बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को, चाहे जितने भी प्रिय हों, इनको आप मरने के लिए छोड़ जाइए। तो यहाँ पर एक आयरनी है, ह्यूमर भी है और आयरनी भी है। रिमेंबर टू प्रेस द सीलिंग स्विच व्हेन एवरी वन इज इन द शेल्टर, और जब सभी लोग शेल्टर में पहुंच जाएं तो सीलिंग स्विच जो है प्रेस कर दीजिए। सेट द रेडिएशन एरियल, टर्न ऑन द गीगर बैरोमीटर। गीगर बैरोमीटर न्यूक्लियर आवेश को, न्यूक्लियर चार्ज को मापता है। टर्न ऑफ योर टेलीविजन नाउ, टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली। तो टेलीविज़न अपना बंद कर दीजिए, रेडियो बंद कर दीजिए। तो देखिए टर्न ऑफ योर टेलीविज़न नाउ, टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली, यहाँ पर टर्न ऑफ बार बार आ रहा है तो एनाफोरा होगा। यहाँ पर क्या होगा? एनाफोरा होगा। एक चीज़ और देखें, टर्न ऑफ योर रेडियो इमीडिएटली द सर्विस एंड एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर द सर्विस एंड, यहाँ फुल स्टॉप है, उसे एट द सेम टाइम, और ये लाइन जो है ये यानी यहाँ पर एंड नहीं होता है। एट द सेम टाइम सिक्योर एक्सप्लोजन प्लग्स इन द ईयर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली। तो ये अगली लाइनों तक चला जाता है, अगली पंक्तियों तक चला जाता है। तो इसे बोलेंगे इंजैम्बमेंट। जैसे फैमिली के बाद ये वाक्य नहीं एंड होता है, वाक्य तो फैमिली के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन पंक्ति नहीं समाप्त होती है, और फैमिली के बाद टेक आ जाता है। तो जब टेक डाउन योर प्लाज्मा फ्लास्क, फ्लास्क के बाद फुल स्टॉप है, इसके बाद लेकिन ये
वाक्य खत्म होता है लेकिन पंक्ति नहीं खत्म होती है। गिव योर चिल्ड्रेन, तो जब पंक्तियाँ वाक्य के साथ नहीं समाप्त होती हैं, यानी पंक्तियाँ जो वाक्य हैं वो अगली पंक्तियों में चले जाते हैं और बीच में समाप्त होते हैं, तो ये व्यवस्था इंजैम्बमेंट कहलाती है। तो इसमें इंजैम्बमेंट पर्याप्त है। तो हम फिर वहीं लौटते हैं कि घोषणा में कहा जा रहा है कि जो आपके प्रिय लोग हैं उनको वहीं छोड़ दीजिए, यदि वे बूढ़े हैं या बेड रिडन हैं, और क्योंकि वे फ्रेश एयर को, ताज़ी वायु को, जो कि एक सीमित है, उसका वे उपभोग करेंगे और अपना टेलीविज़न सेट, अपना रेडियो सेट, ये सब बंद कर दीजिए। एट द सेम टाइम सिक्योर एक्सप्लोजन प्लग्स इन द ईयर ऑफ ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली। टेक डाउन योर प्लाज्मा फ्लास्क्स। Give your children the pills marked 1 and 2 in the CD green container, then put them to bed. Do not break the inside airlock seals until the radiation all clear shows. Watch for the cuckoo in your perspex panel or your district touring doctor rings your bell। यानी कि जब तक जो पर्सपेक्स पैनल पर जो कुकू है वो संकेत न दे कि सारा रेडिएशन समाप्त हो चुका है, या डॉक्टर बेल को न रिंग करे, तब तक जो एयरलॉक सील है उसको न तोड़े, उसे ब्रेक ना करें। तो इसमें ये सारी घटनाएं जो हैं, सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, अनुदेश दिए जा रहे हैं, exhausted or if any of your family in critically injured, administer the capsule marked Valley Forge Red Pocket in number 1 survival kit फॉर पेनलेस डेथ। अब देखिए ये कितना क्रूर है कि ये बताया जा रहा है कि यदि किसी को वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया है तो उसे पेनलेस डेथ के लिए जो वैली फोर्ज, जहाँ पर मार्क है, जहाँ पर वैली फोर्ज लिखा हुआ है, वो कैप्सूल यानी सुसाइडल कैप्सूल, आत्महत्या करने वाला कैप्सूल, उसे खिला दीजिए। Catholics will have been instructed by their priests what to do in this eventuality. This announcement is ending. Our president has already given orders for massive retaliation. यानी ये बताया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भयानक जो एक रिटेलिएशन है, बदला है, तो उसके लिए आदेश दे दिया है। इट विल बी डिसाइसिव, सम ऑफ अस मे डाई, हम में कुछ लोग मरेंगे। रिमेंबर स्टेटिस्टिकली इट इज़ नॉट लाइकली टू बी यू, और आप याद रखें कि जो सांख्यिकी के ढंग से जो डेटा हैं उसमें आपकी संभावनाएं नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक आयरनी भी है, ह्यूमर भी है कि सारे लोग, कुछ लोग मरेंगे, परमाणु युद्ध हो रहा है, ये तो निश्चित है कुछ लोग मरेंगे, लेकिन आपकी संभावना सांख्यिकी के रूप में, आंकड़ों के रूप में, इट इज़ नॉट लाइकली टू बी यू, आपके होने की संभावना नहीं है। आर फ्लैग्स आर फ्लाइंग फुल्ली ड्रेस्ड, अब यहाँ पर एलिट्रेशन है, फ्लाइंग फुल्ली ड्रेस्ड ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स द सन इज शाइनिंग। अब यहाँ पर भी कंट्रास्ट है और आयरनी भी है, सूरज चमक रहा है, झंडे फ्लाइंग फुल्ली ड्रेस्ड है। डेथ इज द लीस्ट वी हैव टू फियर। अब एक अजीब सा है कि डेथ एक सबसे छोटी चीज़ है जिससे हमें डरना चाहिए, यानी सबसे कम हम मृत्यु से डरते हैं। वी आर ऑल इन द हैंड्स ऑफ गॉड।
वेयर एवर हैपेंस हैपेंस बाय हिज विल, और ये सारा जो युद्ध है, सारा विनाश है, वो ईश्वर के माथे मर दिया जाता है। वाट एवर हैपेंस हैपेंस बाय हिज विल, नाउ गो क्विकली टू योर शेल्टर्स। तो पीटर पोर्टर की ये पोयम है, कविता है, और एक क्रूर मानसिकता वाली कविता है, लेकिन आधुनिक है, और ऐसा होता है। अब इसको संक्षेप में दोहरा लेते हैं। योर अटेंशन प्लीज, पीटर पोर्टर। पीटर नेविले फ्रेडरिक पोर्टर 16 फरवरी 1929 to 23 April 2010 was a British based Australian poet, यानी ऑस्ट्रेलियन पोएट थे, ब्रिटेन में रहते थे, पैदा ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। बोर्न 16 फरवरी 1929 ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। डेथ 23 अप्रैल 2010, एज 81, लंदन यूके। यानी 23 अप्रैल को लंदन में इनका निधन हुआ था। 23 अप्रैल को शेक्सपियर की भी मृत्यु तथा जन्म हुआ था। थीम, द पोम echoes the theme of death and disaster. It expresses the theme of the apocalypse, government and society. Tone, the tone is consistently direct and unemotional and is able to produce an even greater imagined panicked mood in those listening, यानी जो लोग सुन रहे हैं उनमें ये जो अनाउंसमेंट है वो पैनिक क्रिएट करता है। पोम 63 लाइन्स बट 1 स्टैंजा ऑफ टेक्स्ट, 63 पंक्तियां हैं लेकिन एक ही स्टैंजा बनता है। नो स्पेसिफिक राइम स्कीम, नॉट एनी मेट्रिकल पैटर्न। This poem is written in the form of a radio announcement warning of a large nuclear attack aimed at all the major cities. There are moments of irony and humor in the poem as the unself-aware announcer asks the listeners to accept their own deaths, trust in God, and leave behind the people and animals they care about. Poetic techniques, anaphora, alliteration, and enjambment are used. Anaphora, repetition, turn off lines 30-31, alliteration line 58, flags are flying high, enjambment, transition between lines 2 and 3 as well as line 9 and 10. Thank you.